یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشریات آپ سنتے ہیں صبح 9:30 سے دوپہر 1:15 تک پہلی مجلس کی نشریات۔ دوسری مجلس ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک۔ تو سنتے رہیے جناب آل انڈیا ریڈیو سے اردو سروس کی نشریات۔ آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک مباحثہ۔ دوستو مباحثہ بڑا اہم ہے، وجہ یہ کہ اس کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے، اور یہ موضوع جڑا ہوا ہے آلودگی سے۔ آپ سب تو جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر ملک جو ہے اس آلودگی سے دوچار ہے۔ ہر طرح کی آلودگی ماحولیات کے تناسب کو بگاڑتی ہے، اور اس میں چونکہ ہم رہتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے، اور سروائیو کرنا ہے، اچھی طرح سے کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں کا ہماری زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور اس طرح کے موضوعات کے لیے ہم اکثر اپنے اسٹوڈیو میں نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، اور آج بھی اس مباحثے میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں کئی نوجوان موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو موضوع بتانا چاہیں گے، اور موضوع ہمارا ہے موجودہ دور میں پلاسٹک کا استعمال اور آلودگی، نوجوانوں کی سوچ۔ تو تعارف کرا دیتے ہیں، میرے ساتھ آج موجود ہیں رہنما نور الاسلام، محمد اسد، مہوش اور شبنم۔ دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پلاسٹک کا استعمال ہماری زندگی میں آج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے کیری کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور بس کہیں بھی گئے ڈسپوزیبل آپ نے گلاس استعمال کیا اور اس کو وہیں پھینک دیا۔ ایک زمانہ تھا جب زیادہ تر اشیاء آپ کو کانچ کی بوتل میں ملا کرتی تھی، حالانکہ ان کو کیری کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، اور وزن کے اعتبار سے بھی وہ بھاری ہوا کرتے تھے۔ اور جہاں تک پلاسٹک کی بات ہے تو اس میں آسانی ہے، اور بہت کم اس میں وزن ہوتا ہے۔ تو آسانیوں کو دیکھتے ہوئے جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے، زندگی ہماری آگے چلتی ہے، بہت ساری تبدیلیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور ہم آسانیاں جو ہیں، شارٹ کٹ جو ہے ان کو اپنانے لگتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ زیادہ شارٹ کٹ کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں جو بہت جلدی ان کو دستیاب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، تو زیادہ نہ کہتے ہوئے ہم اپنے ساتھیوں سے جاننا چاہیں گے، نوجوان ساتھیوں سے، یہ جو پلاسٹک کی آلودگی ہے، یہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ کے نظریے سے یہ ہے کیا، اور ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مہوش سے چاہوں گا کہ وہ کچھ کہیں اس متعلق۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پلاسٹک کا استعمال ہماری زندگی میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسے ایک دم کم کرنا تو ممکن نہیں ہوگا، لیکن ہم دھیرے دھیرے اس کا استعمال کم کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر بازار جا رہے ہیں تو آپ اپنے گھر سے تھیلا لے جائیے، پلاسٹک بیگز کا استعمال کم ہوگا۔ آپ ڈسپوزیبل پلیٹس نہ یوز کر کے کی جگہ کاغذ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کاغذ کی پلیٹس آتی ہیں، اس سے پلاسٹک کا یوز کم ہوگا۔ کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ پلاسٹک کی جگہ دوسرے متبادل کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل، اس سے پلاسٹک کا استعمال کم ہوگا، جس سے اس کا پولوشن یا آلودگی کم ہوگی۔ جی، تو آپ اس طریقے سے اس کا استعمال کم کر سکتے ہیں۔ اب مجھے لگ رہا ہے شاید اسد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس متعلق، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ دراصل ماحولیاتی آلودگی کا ایک حصہ ہے پلاسٹک آلودگی۔ جی بے شک، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں فضائی آلودگی اور آبی آلودگی وغیرہ شامل ہوتی ہیں، اور پلاسٹک آلودگی اسی آبی آلودگی کے تحت آتا ہے۔ تو خاص طور سے جو پلاسٹک ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت لمبے عرصے بعد تحلیل ہوتا ہے، جس کو ڈیگریڈ ہونا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں دیکھیے آپ جو بات کریں دراصل تقریباً 700 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ نے اسد، میں تھوڑا سا اس لیے یہاں آپ کو روک رہا ہوں کہ دو طرح کا پلاسٹک دراصل ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہماری زندگی میں عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ دو طرح کا پلاسٹک ہوتا ہے۔ ایک تو وہ پلاسٹک ہے جو ریسائکل ہو سکتا ہے، اور ایک ایسا ہے جس کو ہم ریسائکل نہیں کر سکتے۔ تو اس میں آپ اس متعلق بتانا چاہتے ہیں کہ جو ڈسپوزیبل ہے اور لیکن اس کو ہم ریسائکل نہیں کر سکتے، ہم اسے ڈمپ کرنا پڑتا ہے، اس متعلق آپ شاید کہنا۔ ریسائکل بہت سارے جو کچھ مخصوص، جیسے جو ابھی مہاراشٹر اور یو پی میں پلاسٹک پر پابندی لگائی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 50 مائکرون سے پتلی جو پلاسٹکس ہیں صرف انہی کو الاؤ کیا گیا ہے، باقی اس سے اوپر کی جو ہے موٹی یا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے ماحولیات کے لیے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس کو روکنے یا اس کے تدارک کا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ مہوش نے ابھی فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ
हमें अपनी आदत में कुछ तब्दीलियां करनी होगी। जाहिर सी ये बात बहुत अच्छा मशवरा दिया इन्होंने। मैं जी। दूसरी चीज एक बताता हूं कि आलमी सतह पर क्या सूरत हाल है। आलमी सतह पर अभी नैरोबी में एक मुआहदा किया गया जिसमें 200 ममालिक शरीक हुए। उन्होंने प्लास्टिक को रोकने के लिए बहुत सारे कानूनी और पॉलिसी लेवल पर कुछ काम करने की बात की। बहुत सारे माहिरीन माहौलियात शामिल हुए जिन्होंने ये कहा कि प्लास्टिक को अगर रोकना है तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें मुतबादिल तलाश करने होंगे जी। क्योंकि जो मल्टी नेशनल कंपनी अपनी मसनूआत बनाती हैं प्रोडक्ट्स, अब जैसे एक सब्जी की बात ले लीजिए तो सब्जी क्या है, लौकी को अगर प्लास्टिक में लपेट देंगे जी। तो वो क्या होता है कि उसकी उम्र बढ़ जाती है, वो सड़ता नहीं है, तकरीबन 15 दिन वो खराब होता है। हाँ, और इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जो खाने की चीजें हैं या और बहुत सारे इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजें हैं जी। प्लास्टिक उसकी जो है खराब होने की दर को कम कर देता है। तो बहुत सारे फायदे भी हैं इससे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि प्लास्टिक के जो जितने नुकसानात हैं उससे कई गुना फायदे भी गिनाए जा सकते हैं। फायदे तो हैं, इन सब चीजों से फवायद तो होते हैं, लेकिन फवायद अगर उसका मुज़िर असर हमारी सेहत पे पड़े तो सेहत से बढ़ के तो वो फायदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि ये जो फायदा आप कह रहे हैं ये बहुत तवील वक्त के लिए नहीं होता, बहुत मुख्तसर वक्त जी, के लिए होता जी, है। यही मैंने बताया कि और दूसरी चीज ये जब इस्तेमाल अगर हम इसका फायदा ज्यादा सोचेंगे कि भाई ये सब्जी ये जो चीज है, जो इस तरह की अशिया हैं, वो अगर ज्यादा वक्त तक महफूज रहेंगी, उसका इस्तेमाल हम देर पा कर सकते हैं और इसलिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो मकसद है हमारा वो फौत हो जाता है। यानी कि हम चाहते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो और हम कम से कम उसका इस्तेमाल करें ताकि माहौलियात में जो है उस और मजीद उसमें बेहतरी आए, उसको हम और बेहतर कर सकें। तो ये आपने कई अच्छी बातें कही। और नूरुल इस्लाम, मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ इस मुतालिक बताएं क्योंकि ये बड़ा अहम मौजू है और आप सब माशाल्लाह नौजवान हैं और नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें हम पूरा ताउन करें, माहौलियात को किस तरह से अपने बचाया जा सकता है, उसमें और ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। क्योंकि देखिए आज की फ़ज़ा जो है इतनी मुकद्दर हो गई है कि उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल है, बहुत दुश्वार हो जाता है। आपने देखा होगा ख़ासतौर पे आप सर्दियों में अक्सर महसूस भी करते होंगे, देखते भी होंगे कि आपको बाकायदा मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ता है। जी, तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ से हमें छुटकारा मिले, ना सिर्फ हमें पूरी दुनिया को बल्कि इससे छुटकारा मिलना चाहिए। तो उस तरफ क्या क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके तय, तो कुछ इस मुतालिक आप बताइए नूरुल। देखिए एक मुहावरा है, चिड़िए की जान जाए और बच्चे का खिलौना। सबसे बड़ी बात है बच्चे को ये पता नहीं है कि वो चिड़िए में जान है और उसके साथ जो खेल रहा है उसको नुकसानात हो रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे मुआशरे को, हमारी नौजवान पीढ़ी को ये बात कम पहुंची है कि जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसको किन नुकसानात से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉलिसी लेवल पर प्लास्टिक के जितने नुकसानात हैं, जो मुज़िर चीज़ें हैं, उसको इतना आम कर देना चाहिए कि हर एक बच्चे को पता है कि ये प्लास्टिक जहर है और आने वाली पीढ़ी को, आने वाली दुनिया को ये तबाह बर्बाद कर देगी। तो मेरा मशवरा तो ये है, सबसे पहले इसको पॉलिसी लेवल पर इतना ज़्यादा फैला देना चाहिए कि प्लास्टिक हमारे लिए मुज़िर है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्लास्टिक से नुकसानात हैं, तो उसका इस्तेमाल हम कम करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब यह है नूरुल आपका कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से लोगों में बेदारी पैदा करनी चाहिए कि किस किस तरह से ये प्लास्टिक जो है हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचा। जी, प्लास्टिक को देखते ही हमें ऐसा लगे कि ये जहर है और न सिर्फ हमारे लिए जहर है, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और बता ये सकते हैं कि प्लास्टिक से जो है मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मछलियां इसको खा रही हैं और मछलियों को, जबकि हमारे ग़िज़ा का हिस्सा है ये, तो मछलियों के जरिए हमारे जिस्म में आ रही हैं, जिससे कैंसर और स्किन प्रॉब्लम और दीगर बीमारियां हमारे जिस्म में दाखिल हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात नूरुल आपने कही और एक पॉइंट बड़ा अच्छा उभर कर आया। देखिए इन्होंने बात की कि प्लास्टिक के ज्यादा इस्तेमाल से जो है कैंसर की बीमारी का खतरा लाहक हो जाता है और बहुत ज्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बड़ा फैशन है कि प्लास्टिक के बड़े रंग बिरंगे बर्तनों में खाने का इस्तेमाल जो है वो चलन काफी बढ़ गया है। हालांकि जब हम देखते हैं और सोचते हैं और सुनते हैं
کہ اسے استعمال کرنے میں کتنے نقصانات ہیں. ہمیں سوچنا بھی چاہیے, اور نہ صرف ہمیں سوچنا چاہیے, جیسا کہ نورل نے کہا کہ لوگوں میں اس کے تئیں بیداری پیدا کرنی چاہیے. آپ بتائیں کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کسی اپنے رشتہ دار کے گھر گئے, آپ دسترخوان پر بیٹھے, آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پلاسٹک کے برتن ہیں. کھانا تو آپ نے کھا لیا, لیکن کھانے کے بعد آپ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ان سے کہہ سکتے ہیں کہ محترم یا محترمہ, اگر آپ پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال کم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, یہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو بات بھی آپ نے کہہ دی, ان کو بری بھی نہیں لگی اور آپ کی بات وہاں تک پہنچ گئی. استعمال ہماری نئی جنریشن کم کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے نور الاسلام, اور میں بھی شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہوں اس متعلق. جی, نور الاسلام نے جیسا کہا کہ مطلب آپ فوٹو لگا کر اس کے بارے میں بیداری لا سکتے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. جسے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. نہیں, لیکن اس میں مہوش ایک بات اور ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے اور لوگوں کو بیدار کریں گے اور عوام کو بیدار کریں گے تو ان میں بیداری آئے گی. اگر ہماری جو سوچ ہے منفی ہوگی تو شاید ہم اتنی کامیابی حاصل نہ کر سکیں جتنا ہم کرنا چاہتے ہیں. جی بتائیے. انوائرمنٹل پولیوشن کو نا مینٹل پولیوشن کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ اپنی سوچ سے, ہاں ظاہر سی بات ہے, ہمیں اپنی ذہنیتوں کو بدلنا پڑے گا, ہماری سوچ کو بدلنا پڑے گا. نہیں بدلنا چاہتے, ہمیں صرف سب آسان چاہیے کہ آسانی سے ہمارا کام ہو رہا ہے. ڈسپوزل پلیٹس یوز کرتے ہیں کہ اس کے بعد اسے صاف نہیں کرنا پڑے, جسٹ تھرو کر دو اس کو. جی, تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اور پلاسٹک بھی ہمارے لیے اس لیے ہی ضروری ہو گیا کیونکہ وہ ہمارا کام آسان کرتا ہے. جی, ہر طریقے سے. چاہے آپ مارکیٹ جا رہے ہو تو آپ کو گھر سے بیگ نہیں لے جانا پڑے گا, آپ کو مارکیٹ سے پلاسٹک کے پولیتھینس اویلیبل ہیں, آپ اس کا یوز کرو تو آپ کا کام آسان ہو رہا ہے. یا کچھ بھی ہو تو اس نے ہماری زندگی تو آسان کی ہے, لیکن ہماری ہیلتھ پہ جو ایشوز ہو رہے ہیں جی, وہ سب سے زیادہ اس سے ختم. جی ہاں, بہت مضر اثرات صحت پہ اس کے واقع ہوتے ہیں, اور اس میں بات اسد نے کی بھی تھی. اور اسد, ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے تئیں بیداری پیدا کرنے میں نوجوان ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں, تو کس طرح سے نوجوانوں کا رول ادا ہو سکتا ہے وہ آپ تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل, بیداری مہم اور آگاہی مہم بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرے گا پلاسٹک کو بیٹ کرنے میں. جیسا کہ 2018 میں یوم عالمی ماحولیات کے موقع پر جو ہمارے نئی دلی ہندوستان میں ہی منعقد ہوا تھا, اس کی تھیم یا مرکزی خیال اس کا یہ رکھا گیا تھا, بیٹ دی پلاسٹک پالوشن. جی بالکل صحیح کہا. یہ بہت ہی اہم وہ ایک طرح کا وہ کانفرنس تھی جس میں دنیا کے بہت سارے ممالک نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. لیکن بیداری مہم پر تو ہمارے تمام احباب نے بہت زیادہ بات کی. جی, لیکن میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ پلاسٹک آلودگی جو ہے ہماری آبی جو حیات ہے, جو مرین لائف سسٹم ہے, اس کو کیسے ڈسٹرب. تھوڑا سا اشارہ نورل نے کیا تھا اس میں, لیکن میں اس میں ایک چیز جوڑنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انسانی بقا اور دیگر حیوانات کی بقا کے لیے جی, آکسیجن ہم جانتے ہیں بہت ضروری ہے, نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے, سمندر میں, اور یہ سمندر میں ایک قسم کا بیکٹیریا ہے سائنو بیکٹیریا, جی, جو آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے, آکسیجن بناتا ہے, جو کرۂ ارض پر یعنی جو ہماری زمین ہے اس پہ تقریباً 10% آکسیجن پروڈیوس کرنے کے لیے ذمہ دار ہے. جی, لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ پلاسٹک آلودگی کی وجہ سے, جو کہ پلاسٹک میں کچھ ایسے کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو اس بیکٹیریا کو جو ہے اس پہ متاثر کر رہے ہیں. وہ بیکٹیریا جو کرتا کیا ہے, فوٹوسینتھیسس کے عمل کو جو ہے, اس بیکٹیریا کے جو فوٹوسینتھیسس کا عمل ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. یعنی کہ 10% آکسیجن وہ بیکٹیریا پروڈیوس کرتا ہے. اب وہ بیکٹیریا کا نشو نما ہی اگر رک جائے گا تو آکسیجن ہمارے سانس کے لیے ایک طرح کی کرائسس. جی ہاں بالکل, بڑی اچھی بات آپ نے کہی اسد, اور یہ جو بیکٹیریا سے متعلق ایک سائنسی معلومات آپ نے فراہم کی, اس بات کو ہمیں اس سے بھی جوڑ دینا چاہیے. جب ہم کسی بیچ پہ گھومنے یا ٹہلنے جاتے ہیں, کسی ساحل کے کنارے ہم جب سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر پانی کی بوتل ہے یا پھر آپ نے کوئی دوسری مشروب استعمال کی ہے, شربت وغیرہ, اور اس کی بوتل آپ کے پاس ہے, تو آپ کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, آپ نے اس کو ختم کیا اور وہیں اس کو پھینک دیا. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوڑا کوڑے دان میں ہی ڈالیں. اگر آپ یہ عادت بنائیں, اور ساتھ میں ایک بات اور ہے, جو آپ کے ساتھ بچے جاتے ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں, کیونکہ جو ہم کام کرتے ہیں وہی بچے بھی کرتے ہیں. کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ ایسا کرو, لیکن وہ آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. آپ نے اگر دیکھیے ان کے سامنے بوتل کہیں ادھر ادھر پھینک دی, یا جو پولیتھین آپ کے پاس ہے جس میں ریپرز بھی ہو سکتے ہیں, پولیتھین کی دوسری چیزیں جو آپ نے استعمال کی, جو اشیاء, ان کے ریپر سے خالی
प्लास्टिक के ही हो, वो आपने वहां डाल दिए, उससे दो नुकसानात होते हैं। एक तो ये कि देखिए आपने वहां कूड़ा इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल दूसरा जो आलूदगी है उसको आपने और बढ़ा दिया। जी तो वहां हमारी आदत ये होनी चाहिए कि हमारे साथ अगर बच्चे भी हैं और दूसरे अफराद भी हैं तो उनके लिए एक नमूना पेश करना चाहिए। बिल्कुल आपने जो चीजें इस्तेमाल की हैं उसको आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, बजाय इसके कि इधर उधर फेंके। वजह तो देखिए यही होती है। जी बिल्कुल। और जो बेदारी या मुहिम चलाई जाती है इसके तई, वो कुछ जो सामाजिक कारकुन हैं उन्होंने खासतौर पे अकेले दम पर इतने अच्छे काम अंजाम दिए हैं कि वो खुद जाकर बीच पर उस गंदगी को साफ करते हैं। साथ में वो नौजवानों की एक टीम उनकी बन गई है जी और इसी काम में लगे हुए हैं और उसमें काफी कामयाबी उनको हासिल हुई है। तो हम भी तो कोई इस तरह का काम कर सकते हैं शबनम, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी सर, क्यों नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपकी बात में ये बात कहूंगी, जो ओशियन कंजर्वेंसी 2015 कोस्टल क्लीन अप जो है जी, उससे हमें बीचेस वगैरह पे 18 मिलियन पॉन्ड जो है जी। आलूदगी मिली है, मतलब प्लास्टिक की चीजें, बॉटल्स वगैरह मिली है। तो हमें इतने बड़े लेवल पे ये सारी चीजें देखने को मिल रही। इससे हमें ये पता चलता है कि लोग जो हैं लगातार कंटिन्यू प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। तो जी। इसको कम करना हम खुद ही इसको कम कर सकते हैं। हमें कोई खुद से मतलब दूसरा आके नहीं बोलेगा कम करने की। जी। जब तक अपने लेवल पे नहीं उठ के इस काम को हम अंजाम देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, जाहिर सी बात है कि पहले हमें अपनी इस्लाह करनी होती है, फिर हम दूसरे की इस्लाह करते हैं। तो शुरुआत तो देखिए हमें ही करनी, हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी है। और जब हम अपने घर से इसकी शुरुआत करते हैं तो फिर वो चीजें आहिस्ता 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 औरों तक पहुंचती हैं और फिर वो एक जब चेन बनती है तो वो है कि अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो वो वाली बात है। देखिए ये सोच हमारी होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है अभी तक हमारे सभी नौजवान साथियों ने कही। आलूदगी के हवाले से प्लास्टिक के खास तौर पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं मुतबादिल की जो बात आती है। जी जी। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा अपने सभी नौजवान साथियों से कि इस तरह के मुतबादिल क्या क्या हो सकते हैं जी। जिनको हम बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक को, वो हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं नूरुल इस्लाम से कहूंगा कि वो कुछ बताएं। अब देखिए, सबसे पहले तो जब हम घर से निकले तो कैरी बैग्स लेके निकलें, जिसको झोला कहते हैं। जी जी बिल्कुल। झोला साथ में रखें और प्लास्टिक्स पर बिल्कुल मुनहसर न रहें। जी। और इसके साथ साथ जो सड़क के किनारे 3 कलर के डस्टबिन्स लगे होते हैं, अगर हम कहीं कोई डिस्पोजल इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो प्लास्टिक वाला जो डिब्बा है उस डिब्बे में हम उसको डालें। होता यह है कि डिस्पोजल को जब हम मखसूस डस्टबिन में डालते हैं तो वो वहां से उठ के सीधे रिसाइकिल या तो उसको एक जो मुनज़्ज़म तरीके से जो डिस्पोज किया जाता है वो वहां पहुंच जाता है। उसकी जो मखसूस जगह है उसको वहां पहुंचा दिया जाता है और वो प्लास्टिक खत्म हो जाता है। जब हम उसको सड़क के किनारे और कहीं भी ऐसे ड्रॉप कर देते हैं वो बहुत ज्यादा मुज़िर है हमारे लिए। जी, तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि मुतबादिल के तौर पे आप कपड़ों के सिले थैलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे आप अपने घर से भी ले जा सकते हैं। और देखिए ये आजकल बाजार में बड़े खूबसूरत, अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनको ज़्यादा लग्जरी या एसेसरीज का शौक होता है, तो वो हर चीज़ में खूबसूरती को भी तलाश करती हैं। तो आपने मार्केट में देखा होगा कि बड़े अच्छे थैले मिलते हैं और बड़े अच्छे डिज़ाइन उसमें, तो वो आपको अपनी तरफ मुतासिर करते हैं कि आप उनको कैरी कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप प्लास्टिक का बैग लेकर जाएं तो आप कपड़े का बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और असद ने शायद अभी कहा भी था कि जूट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बहुत कम मिकदार में कोई चीज़ आपको लेनी है तो आप पेपर बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मुतबादिल और है आपके पास, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी मुतबादिल जो है हमें इनको अपनाना पड़ेगा और जब तक हम इन्हें अपनाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि अमली तौर पे फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए लंबी लंबी स्पीचेस देने से या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अमल बहुत जरूरी है। कहा भी जाता है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फिरत में न नूरी है न नारी है। आपने शायद शेर सुना भी होगा, तो ये इसी वजह से कहा जाता है। बाल का है। तो देखिए बड़ी उम्दा बातें निकल कर सामने आई हैं कि सभी नौजवान ये चाहते हैं कि अवाम में इसके तय बेदारी पैदा होनी चाहिए।
तो शबनम ने शायद कुछ बताया है इस मुतालिक। जी सर, जैसे बात आती है कि हम यूज कैसे कम कर सकते हैं जी। तो हम सर देखते हैं कि शादी पार्टियों में हम आजकल ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही तो शबनम। उसकी जगह पे हम मेटल का जो प्लास्टिक वो होते हैं, प्लेट्स होती हैं, ग्लास होते हैं, जग होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ भाई, जिससे बहुत कि अच्छी बात आपने pollution कही कम शबनम, होगा। बड़ी अच्छी बात, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए एक जमाना था कि सारे जो इस तरह की क्रॉकरी जिसे कहते हैं हम इस्तेमाल करते थे, वो स्टील की हुआ करती थी या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन जो आजकल भी इस्तेमाल में है, जैसे ऐसी तांबे बात का नहीं। जो जग होता जी है, हाँ, ग्लास होता है, वो बिल्कुल। हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा होता है। हाँ, हेल्थ के अगर सेहत के एतबार से देखा जाए तो वाकई वो आपके लिए फायदेमंद होता है, और उसमें रखा हुआ पानी अगर पिए तो बहुत सी बीमारियों को भी दूर करता है आपसे। तो बहुत ही अच्छा एक पॉइंट शबनम ने दिया हमें कि हम प्लास्टिक प्लेट्स की जगह, गिलासेस की जगह या बॉटल्स की जगह जो है स्टील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जायका भी बढ़ जाता है। प्लास्टिक की बड़ी बड़ी बाल्टीज होती है, उसकी जगह हम लोग घड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं सर पानी। साउथ इंडिया के अंदर तो ट्रेडिशन ही है खाना जो है वो केले के पत्ते पे खाने। जी हाँ, अब इससे देखिए कितना फायदा होता है माहौलियात में कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। और एक जो रिवायत है, ट्रेडिशन है कि बाकायदा नीचे आप बैठे हैं और केले का पत्ता रखा है और उस पे आप खाने को नोश फरमा रहे हैं। और एक बात और है, एक आज के दौर में एक नौजवानों में फैशन है, आपने कुल्हड़ चाय का जिक्र नहीं किया, मुझे ताज्जुब था कि आप लोगों ने क्यों नहीं जिक्र किया। क्योंकि देखिए आजकल कहीं भी आप जाते हैं किसी ढाबे पे या होटल पे, तो वहां आपको कुल्हड़ में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, और चाय की तासीर भी बदल जाती है। हाँ, तासीर भी बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक फायदा भी है जी, भाई, वो मुतबादिल के तौर पे भी काम माहौलियात कर के रहे हैं। एतबार से और माहौलियात के एतबार से भी, तो आप अगर कोशिश करें तो इस के मुतालिक बहुत कुछ किया जा सकता है इस मुतालिक। और जो प्लास्टिक से आलूदगी होती है हमारी फ़ज़ा में, और जो फ़ज़ा मुकद्दर होती है जिसकी वजह से सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है आज के दौर में, तो इन सारी परेशानियों से, दुश्वारियों से हमें निजात मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आज का जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है, हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसमें। और इसमें देखिए आजकल आप लोग सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए, सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी बातें करते हैं दूसरी तरह की, लेकिन हम ये काम भी तो कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका नूर? आजकल तो स्टेटस लगाने का बहुत ट्रेंड है, लोग बहुत शौक से दूसरों का स्टेटस देखते हैं। तो स्टेटस के तौर पर हम ये मुस्बत चीजें भी कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक बीट का भी एक पहलू है कि उन तस्वीर को जो प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात हैं या प्लास्टिक को कैसे हम अपनी जिंदगी में कम करें, इस स्टेटस को और सोशल मीडिया पे कुछ लिख के हम इसका इजहार कर सकते हैं, तो इसका बहुत ही मुस्बत असर हमें हमारी जिंदगियों पर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही नूरुल इस्लाम आपने कि आप अपने स्टेटस का इस्तेमाल इस तरह से बेदारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत उम्दा बात। देखिए कितनी बात से बात निकलती है। देखिए तो मैं भी शायद कुछ कहना चाहती हूँ कि वक्त हमारे पास अब कम है, और क्योंकि वैसे तो ये इस तरह का मौजू है कि इस पर जितनी बात की जाए कम है, और क्योंकि हम तो चाहते ही यही है कि हमारे जो नौजवान हैं वो आगे आएं और पूरा ताउन करें। क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, वही सब कुछ नहीं करती, समाज में और के लिए भी और मुल्क के लिए भी हम नौजवानों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और हमें उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। सर आपने जो हुकूमत की बात की है, यही हम ये देखें सिटीज में और विलेजेस में कहाँ फर्क आता है। जी, तो जहां हम देखते हैं कि विलेज और सिटीज में डिफरेंस ये आ जाता है कि वहां तो फौरन उस पर अमल हो जाता है अगर हमारी सेहत के लिए कोई चीज नुकसानदेह है, लेकिन सिटीज में हम देखते हैं कि हम सिर्फ अपनी फैसिलिटी देखते हैं कि हमें किस काम में आसानी है, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। कहने का मकसद आपकी है कि बहुत ही फास्ट लाइफ है, बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है, उसमें हमारे पास वक्त नहीं है कहकर हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज के मौजू के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी मुफीद बातचीत हुई आप सभी नौजवान साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। और सामीन, आज ये जो मुबाहिसा हम आपके लिए लेकर आए थे, इसका मौजू था मौजूदा दौर में प्लास्टिक का इस्तेमाल और आलूदगी, नौजवानों की सोच। और इस मुबाहिसे में हिस्सा ले रहे थे रहनुमा नूरुल इस्लाम, मोहम्मद असद, महविश और शबनम। हम सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी और मौजू पे तबादला ख्याल होगा। और सामने इसके साथ ही अपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत आज का नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम खत्म करने की। खुदा हाफिज।
सामिन अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात आप तक पहुंच रही हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के जरिए।